Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you'll be fine. I'm here with a new video related to active and passive. The first part has been shared with you people earlier, and now it's time to move towards the second part of active and passive. We have to move forward because in the earlier video we have discussed about what actually active and passive are, how to identify which voice is active and which one is passive, and now it's time to move towards the conversion of active and passive and vice versa. That is how to change an active voice into a passive one, and what are the rules to change a passive voice into an active one, how to do it. Basically, these are two voices that enable us to look at the same action in two different ways, right? The active voices looks at the action from the point of view of agent of the action, and the passive voice looks at the action from the point of view of the person or object affected by the action, right? We have already discussed it in the previous video, and now it's time to move towards the conversion of these two voices. Here I have two sentences: a tracheous piece of bog engulfed all three of them. And the other way we can say it as they were all three engulfed in a tracheous piece of bog, right? What we have done, we have changed the places of subject and object, and the voices are altogether opposite of one another. So it depends on what we want to emphasize, either on the subject or the object, either on the agent or the affectee of the action. Okay? So basically we use passive voices in a case where what is done, has been done or needs to be done is more important than the agent. ठीक है? अगर हमारे पास जो वर्ब परफॉर्म किया गया है उसके एजेंट से ज़्यादा क्या काम हुआ था, क्या काम हो चुका है या क्या काम होगा वो इम्पोर्टेंट है, तो फिर हम वहां पर पैसिव वॉइस यूज करते हैं. ठीक है? और समटाइम्स व्हेन द एजेंट इज ऑब्वियस और नोन और पीपल इन जनरल आर एजेंट्स, then also we use passive voice instead of active voice. For example, it is said that she is a very intelligent person. It is said that. ठीक है? तो ये मेरे पास एक पैसिव वॉइस है. यहां पर हमने ये नहीं बताया कि कौन कहता है, बिकॉज इट्स ऑब्वियस, दे से लोग कहते हैं. ठीक है? तो इन जनरल एक चीज कॉमन है, क्या कहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि शी इज वेरी इंटेलिजेंट. यहाँ पर उसकी इंटेलिजेंस के ऊपर इंपॉर्टेंस देनी है, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये बात कही जाती है कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है. ठीक है? Okay, now let's move towards the rules. One by one, I am going to discuss each and every rule in detail so that it would become very clear to you to how to change an active voice into a passive one and vice versa. ठीक है? तो हम यहाँ पर एक एक रूल को डिस्कस करते जाएंगे. आप इनको नोट डाउन करते जाइए और स्किप मत कीजिएगा वीडियो, ताकि आपका कोई भी रूल बीच में से मिस ना हो. अगर आप इन रूल्स के ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी हो जाती है तो आपको कभी भी एक्टिव को पैसिव में और पैसिव को एक्टिव में चेंज करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह. नंबर 1, all the sentences in active voice cannot be changed into passive. What does it mean? It means the object becomes the subject. Therefore, only active transitive verbs with objects can be changed into passive voice. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जितने सेंटेंसेस एक्टिव में होते हैं वो सारे के सारे पैसिव में चेंज नहीं होते. ये जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस जो एक्टिव में मौजूद है उसको हम पैसिव में भी चेंज कर सकें. कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनको पैसिव में चेंज नहीं किया जा सकता. ठीक है? क्योंकि सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स वाले जो सेंटेंसेस हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, सिर्फ उसको हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव में वही हमारा सब्जेक्ट बन जाता है. पैसिव वॉइस में इनकी प्लेसेस एक दूसरे के साथ चेंज हो जाती हैं, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जिसको हम अपना सब्जेक्ट बना सकें. तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा, तो हम उसको पैसिव भी नहीं बना सकते. इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब यूज हो रहा हो और उसके साथ एक ऑब्जेक्ट मौजूद है सेंटेंस में, तभी हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे. ठीक है? नंबर 2, सब्जेक्ट कैन बी मेंशन्ड ओनली with the help of preposition, usually by or with is used, so it becomes object. अच्छा, हमने ये बात आपको पहले बताई कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है. तो सब्जेक्ट कहाँ जाता है? जो एक्टिव में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट की प्लेस पर चला जाता है.
और वो सिर्फ अकेला नहीं जाता, उसके साथ कोई ना कोई प्रेपोजिशन होता है। यूजली हम कौन से प्रेपोजिशंस यूज कर रहे होते हैं? बाय या विद, ठीक है। और कभी कभी हम टू का भी इस्तेमाल करते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये दो बातें आप याद रखिए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आ जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस पर आ जाता है। ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, वरना हमारा पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, इसलिए हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब का होना जरूरी है। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स वाले सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात, सब्जेक्ट हमारा हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा और वो हमेशा प्रेपोजिशन विद या बाय के साथ होगा। अच्छा जी, अब तो हमें ये पता चल गया कि ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो कभी कभी ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा होता है जिसके पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। कभी कभी तो सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, उसको डील करना हमारे लिए बहुत आसान है। लेकिन अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स आ जाएं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। अच्छा, इस चीज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। इसके लिए मेरे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है, मिस्टर सिद्दीकी टॉट अस इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर टॉट हमारे पास वर्ब है और दो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, अस और इंग्लिश। ये अफेक्टिंग है हमारे वर्ब्स के, ठीक है। मिस्टर सिद्दीकी ने हमें पढ़ाया इंग्लिश। किसको पढ़ाया? अस। क्या पढ़ाया? इंग्लिश। तो ये जो जवाब होता है क्या किया, ठीक है, जो वर्ब आपका परफॉर्म किया गया है उसके साथ अगर हम व्हाट का क्वेश्चन लगा दें, दैट मिस्टर सिद्दीकी टॉट व्हाट, क्या पढ़ाया, तो इसका जवाब हमारे पास क्या आ रहा है? इंग्लिश। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन होता है वर्ब के साथ व्हाट लगाने से जो उसका आंसर होता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और टू हुम का जो आंसर होता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मिस्टर सिद्दीकी टॉट टू हुम, मिस्टर सिद्दीकी टॉट अस। मिस्टर सिद्दीकी ने किसको पढ़ाया? हमें पढ़ाया। लेकिन क्या पढ़ाया? इंग्लिश पढ़ाई, इसलिए इंग्लिश यहाँ पर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अस हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब हमारे पास इस तरह का सेंटेंस हो तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर कौन से वाले ऑब्जेक्ट को लेकर जाएंगे? इनडायरेक्ट को या डायरेक्ट को? तो इसके अंदर हम दोनों को सब्जेक्ट की प्लेस पर ले जा सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट की प्लेस पर जाएगा उसके अलावा जो दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारा वो रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहलाता है, वो अपनी प्लेस पर एग्जैक्टली वैसे ही मौजूद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे पास है मिस्टर सिद्दीकी टॉट अस इंग्लिश, तो हम यहाँ पर अस को भी पहले ले जा सकते हैं सब्जेक्ट की प्लेस पे और इंग्लिश को भी ले जा सकते हैं। नंबर वन, अगर हम अस को लेके जाते हैं सब्जेक्ट की प्लेस पे तो अस चेंज हो जाएगा हमारे पास वी से, और अगर हम इंग्लिश को लेकर जाते हैं सब्जेक्ट की प्लेस पे तो हमारे पास इंग्लिश जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इंग्लिश वॉज टॉट, टॉट चेंज हो जाएगा बी वर्ब के अंदर, तो वॉज टॉट अस। ये देखिए आप, अस अपनी जगह पर ही है, टॉट के बाद ही आ रहा है। उसके बाद हम जो सब्जेक्ट है उसको चेंज कर रहे हैं बाय के साथ, बाय मिस्टर सिद्दीकी। और यहाँ पर अस को हम जब सब्जेक्ट बना रहे हैं तो अस चेंज हो जाएगा वी के साथ, ठीक है। प्रोनाउंस जो है वो जब प्लेसेस चेंज करते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर अस ऑब्जेक्ट की प्लेस पे था, जब वो चेंज होगा सब्जेक्ट की प्लेस पे तो वो वी बन जाएगा, और वी के साथ हम वर यूज करते हैं, वॉस यूज नहीं करते। यहाँ इंग्लिश सिंगुलर के साथ हमने वॉस यूज किया था, यहाँ पर वर यूज कर रहे हैं। तो वी वर टॉट इंग्लिश अपनी प्लेस पर ही है, ऑब्जेक्ट की प्लेस पर ही है। उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है वो आखिर में आएगा बाय मिस्टर सिद्दीकी, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर वन में अस और नंबर टू में इंग्लिश, ये हमारे रिटेन्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। बाकी जो हमारे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस पर आए हैं वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि कभी कभी हमारे पास preposition to भी आ जाता है। ये कब होता है हमारे पास? In some cases preposition to is used in passive voice before the noun that is the indirect object. ये कब होगा? जब हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और उसके साथ एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जब हम उसको चेंज कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम टू लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल गेव रीमा अ प्राइज। द प्रिंसिपल गेव व्हाट? द प्रिंसिपल गेव अ प्राइज, तो अ प्राइज हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द प्रिंसिपल गेव टू हुम? द प्रिंसिपल गेव टू रीमा। रीमा को दिया है और क्या दिया है? प्राइज दिया, तो प्राइज हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, रीमा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम इसको दोनों तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात कि अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से चेंज कर रहे हैं तो अब प्राइज हमारा रिटेन्ड ऑब्जेक्ट होगा, रीमा हमारा सब्जेक्ट की प्लेस पर आ जाएगा, फिर गेव चेंज हो जाएगा वॉज गिवन में, और आ प्राइज अपनी जगह पर रहेगा, फिर आ जाएगा बाय द प्रिंसिपल, ठीक है। ये तो सिंपल हो गया। लेकिन अगर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिटेन्ड ऑब्जेक्ट बने, यानी जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाए
तो हम यहाँ पर जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे पहले हम टू लगाएंगे। अ प्राइज was given to रीमा। ये रिटेंड ऑब्जेक्ट है, यहां पर हम इससे पहले ऐड कर रहे हैं टू को, टू रीमा बाय द प्रिंसिपल। तो हमारा अगर रिटेंड ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या कहा मैंने, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हमारा रिटेंड ऑब्जेक्ट है यानी हम उसको सब्जेक्ट नहीं बना रहे, अपनी प्लेस पर ही रख रहे हैं, तो हमारा उससे पहले टू लगाना जरूरी है। अ प्राइज वॉज गिवन टू रीमा, एक प्राइज दिया गया रीमा को, टू रीमा बाय द प्रिंसिपल। ठीक है, ये सिर्फ तभी होगा जब हमारा रिटेंड ऑब्जेक्ट हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या क्या चीजें सीख ली, एक्टिव एंड पैसिव को किस तरह से चेंज कर रहे हैं, और उसी के बीच में हमारे पास जो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब्स आ जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो उसको हम किस तरह से डील करते हैं वो भी हम यहाँ पर एक साथ सीख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो बात जो मैंने आपको कल बताई थी कि हमारे क्या क्या रूल्स होते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि हमारे पास जो 9 टेंसेज हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के तीनों, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस एंड परफेक्ट, उनको किस तरह से चेंज किया जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन द टेंस ऑफ द एक्टिव वर्ब एंड अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब बी हैज टू बी यूज्ड विद द पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ द एक्टिव वर्ब टू गेट द पैसिव वॉइस। यानी पैसिव वॉइस के अंदर हम पास्ट पार्टिसिपल ही फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, और उसके साथ हम बी वर्ब भी यूज करते हैं। बी वर्ब किसको कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, बिन और बीइंग, और इसके साथ विल बी, शैल बी, तो ये सारे वर्ब्स हमारे यूज होते हैं। सो अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब्स फॉर द गिवन टेंसेस विल बी एज फॉलोज। सिंपल प्रेजेंट चेंज हो जाएगा, इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म। सिंपल पास्ट चेंज हो जाएगा, वॉज, वर प्लस थर्ड फॉर्म। सिंपल फ्यूचर चेंज हो जाएगा, विल बी, शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट हमारे पास एक थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, उसको समझने में आपको हो सकता है आपके लिए ये नई बात हो, लेकिन बहुत आसान बात है। अभी हमने डिस्कस किया था एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसके अलावा भी एक चीज होती है बच्चों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होते हैं ये हमारे सब्जेक्ट के अलावा होते हैं। यानी सब्जेक्ट और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी भी सेम चीजें नहीं हो सकते। ठीक है, वो उसकी प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग होंगे, लेकिन कभी कभी हमारे पास ऑब्जेक्ट की प्लेस पर कोई ऐसा वर्ड या फ्रेज आ जाता है जो लिंक्ड होता है सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, उसका ताल्लुक सब्जेक्ट के साथ होता है, कभी कभी उसका ताल्लुक सब्जेक्ट के साथ होता है, कभी कभी उसका ताल्लुक ऑब्जेक्ट के साथ होता है। तो हम उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कहते, बल्कि हम उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अगर उसका ताल्लुक ऑब्जेक्ट के साथ है तो उसको ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, अगर उसका ताल्लुक सब्जेक्ट के साथ है तो उसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इट इज रिलेटेड टू। ठीक है, लेकिन कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो उसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ट्रांसिटिव वर्ब को हम कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ठीक है, वो हमारा प्रॉपर ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि उसका ताल्लुक या तो ऑब्जेक्ट से होता है या सब्जेक्ट से होता है। किस तरह से, पहले आप प्रीवियस एग्जाम्पल को देख लीजिए, फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एग्जाम्पल थी, द प्रिंसिपल गेव रीमा अ प्राइज। यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स थे, रीमा और अ प्राइज, लेकिन ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स का ताल्लुक सब्जेक्ट से नहीं है। रीमा और प्रिंसिपल अलग अलग पर्सनालिटीज हैं, इसी तरह प्राइज और प्रिंसिपल भी अलग अलग चीजें हैं, तीनों अलग अलग हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इनमें से कोई भी सेम नहीं हो सकता। लेकिन अब आप ये वाली एग्जाम्पल देखिए, द पीपल मेड हिम द किंग ऑफ दैट लैंड। अब द पीपल हमारे पास सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है। ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि इसके साथ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, मेड हिम, पीपल ने उसको बना दिया। तो यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट से अलग है, पीपल अलग लोग हैं, और जिसको किंग बनाया है वो अलग है। ठीक है, ये दोनों अलग हैं। लेकिन उसके आगे आप देखिए, द किंग ऑफ दैट लैंड, उस जमीन का बादशाह। तो बादशाह और वो जिसको बनाया गया है, क्या वो अलग अलग है या वो सेम है, सेम पर्सनालिटीज हैं। यानी उसको बादशाह बना दिया, तो बादशाह भी वही है और वो ही बादशाह है। ठीक है, हिम और द किंग ऑफ दैट लैंड सेम पर्सनालिटीज है, अलग अलग पर्सनालिटीज नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो यहां पर हम इसको
ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, बल्कि इसका ताल्लुक क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ है इसलिए हम इसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट को ही, ये अलग से कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑल्दो ये जवाब हमें दे रहा है कि क्या बनाया, मेड वॉट, द पीपल मेड वॉट, तो आप ये कह सकते हैं कि ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, बल्कि ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। द पीपल मेड वॉट, द पीपल मेड द किंग ऑफ दैट लैंड। किसको बनाया? द पीपल मेड हिम। क्या बनाया? द किंग ऑफ दैट लैंड। लेकिन ये जवाब हमारा क्यों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा? क्योंकि ये इसी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड है, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट बनने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उसका ताल्लुक प्रीवियस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के साथ ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 हमारे पास जो रूल है वो ये है, व्हेन एन एक्टिव ट्रांसिटिव वर्ब ऑफ एन इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन इज मेड पैसिव, द ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बिकम्स अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास जो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है यही हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। उसकी वजह ये है बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वर्ब बिकम्स द सब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, ये ऑब्जेक्ट जब हम पैसिव में इसको चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्ट की प्लेस पर आ जाएगा। जब ये सब्जेक्ट की प्लेस पर आएगा तो इसी के साथ इसका जो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है इसके साथ आएगा, और जब ये सब्जेक्ट होगा तो यही कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन रहा है और जिसके साथ कॉम्प्लीमेंट होता है वही कहलाता है। अगर ऑब्जेक्ट के साथ है तो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट के साथ है तो सब्जेक्टिव। यहां पर हमारे पास सेंटेंस है एक्टिव में, द पीपल मेड हिम द किंग ऑफ दैट लैंड। जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये हिम चेंज हो जाएगा ही में, मेड चेंज हो जाएगा वॉज मेड में, और उसके साथ हमारे पास ये जो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है यही आ जाएगा, और ये ही के साथ इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। ही और द किंग ऑफ दैट लैंड सेम पीपल है, सेम लोग हैं, तो ही वॉज मेड द किंग ऑफ दैट लैंड बाय द पीपल, और ये जो द पीपल था ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहेंगे तो आपको इनको रिवाइज करने में, इनको समझने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, एवरीबडी कॉल्ड गनी अ फूल। एवरीबडी कॉल्ड, कॉल्ड हमारे पास वर्ब है और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, गनी। हर एक बुलाता है गनी को, क्या बुलाता है, अ फूल, ठीक है। अगर आप ये कहें एवरीबडी कॉल्ड व्हाट, हर एक क्या बुलाता है, तो उसका आंसर होगा अ फूल। लेकिन ये अ फूल इसी से रिलेटेड है, किसको बुलाया जाता है, गनी को। गनी और अ फूल दोनों एक ही शख्स को कहे जा रहे हैं, एक ही बंदा है, तो इसीलिए ये अ फूल अलग से ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, बल्कि गनी को ही ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट जब होता है तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ठीक है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, यहां पर हमारा आ गया गनी, कॉल्ड चेंज हो जाएगा वॉज कॉल्ड में, और ये हमारा जो अ फूल है उसके साथ सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, और हम एवरीबडी को ऑब्जेक्ट बना देंगे बाय एवरीबडी। तो हमारा चेंज होके पैसिव वॉइस क्या होगा, गनी वॉज कॉल्ड अ फूल बाय एवरीबडी। उसके बाद आ जाइए स्टूडेंट्स इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के ऊपर, यानी जिसके अंदर हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, जिसमें हम ऑर्डर दे रहे होते हैं, इन सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इनको भी हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं, तो इसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। इसको हम कैसे चेंज करते हैं, लेट्स सी। यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है स्विच ऑफ द लाइट्स, ये एक ऑर्डर है। इसको जब हम चेंज करेंगे तो किस तरह से कहेंगे, लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑफ। यहाँ पर द लाइट्स जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, और स्विच ऑफ को हमने चेंज कर दिया स्विच्ड ऑफ में, और उससे पहले हमने लगा दिया लेट, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर या तो हम लेट से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। वो उस वक्त है जब हम ऑर्डर दे रहे हो, और अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम किस तरह से कहेंगे, प्लीज डू नॉट ईट इनसाइड द ऑडिटोरियम, ठीक है। ये हमारा एक्टिव है, इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो प्लीज की जगह पर हम क्या लगा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। डू नॉट की जगह पर डू को हमने रिमूव कर दिया, नॉट टू ईट इनसाइड द ऑडिटोरियम, ठीक है। प्लीज की जगह पर हम सिर्फ लगा रहे हैं यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। अगर कोई ऑर्डर दे रहे हैं तो लेट से स्टार्ट करेंगे, अगर कोई हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड से चेंज कर देंगे पैसिव में, और उसको हम ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे। इसमें हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। चलिए जी स्टूडेंट्स, अब मेरे पास एक एक्सरसाइज है, हम इसको वन बाय वन डील करते हैं। कुछ सेंटेंसेस हैं, इसको चेंज करते हैं, इनकी वॉइसेस को, पैसिव को एक्टिव में और एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई कि विच सेंटेंस इज इन विच वॉइस, एक्टिव और पैसिव।
ऑल द डिशेस हैव बीन कुक्ड बाय मदर, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और इससे पहले हैज, हैव, हैड या विल हैव नहीं है, तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, पैसिव वॉइस है तो फिर कौन सा टेंस है हमारे पास, ये हमें हैव बता रहा है कि ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, इसको हम बिल्कुल आसानी के साथ चेंज कर लेंगे। बदर हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। ऑल द डिशेस हमारे पास सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट में चली जाएंगी। और हैव बिन वापस अपने प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस में वापस आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता होगा कि परफेक्ट टेंस के अंदर हम थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं, तो कुक्ड अपनी जगह पर कुक्ड ही रहेगा। तो हमारा सेंटेंस चेंज होकर क्या बन जाएगा, बदर हैज। अच्छा, ये हैव था क्योंकि यहाँ पे प्लूरल था डिशेस, यहाँ पे सिंगुलर आ गया बदर, तो हमने इसको चेंज कर दिया हैज कुक्ड ऑल द डिशेस। ठीक है, नंबर 2, क्लोज द विंडोज इमीडिएटली। क्लोज द विंडोज, ये एक ऑर्डर है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसको कैसे चेंज करेंगे हम लोग, लेट द विंडोज बी क्लोज्ड इमीडिएटली। ओके, लेट द विंडोज बी क्लोज्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से चेंज हो गया ये इमीडिएटली एज इट इज। वी शेल डू वट एवर यू टेल अस। वी शेल डू, हमें वो करना चाहिए जैसा तुम हमसे कहो, जो कुछ कहो। तो यहां पर हमारे पास वट एवर यू टेल अस, ये क्या है, ऑब्जेक्ट बन रहा है किसका, डू का। वी शेल डू, हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वट एवर यू टेल अस। तो हम एग्जैक्टली इसको ऐसे ही करेंगे, वट एवर यू टेल अस शेल बी, शेल चेंज हो जाएगा किसमें, शेल बी डन बाय अस। तो देखा आपने कितना सिंपल है, ये सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हमारा आ गया बाय अस से चेंज होके, वट एवर यू टेल अस ऑब्जेक्ट था, ये एग्जैक्टली हमारा सब्जेक्ट बन गया। शेल डू चेंज हो गया शेल बी डन में। ठीक है, दीज रूम्स आर क्लीन्ड एवरी डे, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये पैसिव वॉइस है, दीज रूम्स आर क्लीन्ड, आर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास पैसिव में मौजूद है। हम इसको किस तरह से चेंज करेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखेंगे हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता हम उसको पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इट विल रिमेन सेम, वी कैन नॉट चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस। देन कम्स नंबर 5, वी हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस मैटर। वी हैव रिसीव्ड, क्या नहीं रिसीव किया, नो इन्फॉर्मेशन। यहां पर हमारे पास रिगार्डिंग दिस मैटर जो ऑब्जेक्ट है उसी का कॉम्प्लीमेंट है। इन्फॉर्मेशन और ये मैटर एक ही चीजें है ना। ठीक है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिली इस मैटर के बारे में, तो हम यहां पर इसको जब चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, नो इन्फॉर्मेशन हैज बिन रिसीव्ड रिगार्डिंग दिस मैटर बाय अस। ये देखिए यहां पर नो इन्फॉर्मेशन हमारा ऑब्जेक्ट था और ये रिगार्डिंग दिस मैटर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट था। जब हमने इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया नो इन्फॉर्मेशन को, तो उसी के साथ रिगार्डिंग दिस मैटर हमारा क्या बन गया, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। नो इन्फॉर्मेशन हैज बिन, हैव चेंज हो गया, हैज बिन रिसीव्ड रिगार्डिंग दिस मैटर बाय अस, सब्जेक्ट भी चेंज हो रहा है अस में। नाउ वी हैव अ सेंटेंस, इट इज सेड, ये कहा जाता है, कौन कहता है ये नहीं पता, तो ये क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। इट इज सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हम इसको क्या लिखेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इट इज सेड दैट को हम कट कर देंगे तो वो हमारा चेंज हो जाएगा एक्टिव वॉइस में, क्योंकि ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, कोटेशन है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे पैसिव में तो क्या हो जाएगा, इट इज सेड दैट एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स विजिट दिस होली साइट। सिंपल है, एक्टिव वॉइस है, विजिट करते हैं हर साल थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स इस होली साइट को, तो हम इसको चेंज कर देंगे किस तरह से, दिस होली साइट हमारा ऑब्जेक्ट है, वो चेंज हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट में। बाकी हमारा सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। और एवरी ईयर को हम सेंटेंस के बिगिनिंग में भी रख सकते हैं और एंड में भी रख सकते हैं। दिस होली साइट इज विजिटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स एवरी ईयर, और एवरी ईयर दिस होली साइट इज विजिटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स। नेक्स्ट, द फोर्ट वॉज सराउंडेड बाय द एनिमी, वॉज सराउंडेड, दिस इज पैसिव वॉइस। इट्स सिंपल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर, वॉज सराउंडेड चेंज हो जाएगा एक्टिव में सराउंडेड से। द एनिमी सराउंडेड द फोर्ट। द होल फ्लोर वॉज कवर्ड विद अ ब्यूटिफुल कार्पेट। ये आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास विद का इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब है ये क्या है, पैसिव वॉइस है। ये किस तरह से चेंज होगा, अगेन इट्स वेरी सिंपल, अ ब्यूटिफुल कार्पेट ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन गया, द होल फ्लोर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन गया, वॉज कवर्ड चेंज हो गया वापस कवर्ड के अंदर, अ ब्यूटिफुल कार्पेट कवर्ड द होल फ्लोर।
नेक्स्ट सेंटेंस, द फार्मर्स प्लव्ड द लैंड, वन सेंटेंस, एंड सोड सीड्स। यहां पर ये दो सेंटेंसेज हैं जिसको एंड के साथ ऐड कर दिया गया है, तो हम इनको चेंज भी अलग अलग करेंगे। द फार्मर्स प्लव्ड द लैंड वॉज प्लव्ड बाय द फार्मर्स, एंड सोड सीड्स चेंज हो जाएगा, एंड सीड्स वर सोन। सो दिस वुड बी द पैसिव वॉइस। नेक्स्ट इज पेली हैज स्कोर्ड मोर देन 1000 गोल्स। पेली हैज स्कोर्ड, ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है हमारे पास एक्टिव में, इसको हम चेंज कर देंगे पैसिव में। तो ये हमारे पास पूरा ऑब्जेक्ट मोर देन 1000 गोल्स ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन जाएगा, और हैज चेंज हो जाएगा हैव बिन में, स्कोर्ड बाय पेली। नंबर 12, दिस मैसेज शुड बी गिवन हिम एज सून एज पॉसिबल। दिस मैसेज शुड बी गिवन हिम, तो यहां पर हमारे पास मॉडल वर्ब है शुड बी, पैसिव वॉइस है, हमें इसको चेंज करना है एक्टिव में। किस तरह से हम इसको चेंज करेंगे? नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू डेकोरेट दिस रूम विथ फ्लावर्स। वी आर गोइंग टू डेकोरेट दिस रूम विथ फ्लावर्स, ये बेसिकली फ्यूचर इंडेफिनिटिव, फ्यूचर सिंपल सेंटेंस है। वी विल डेकोरेट दिस रूम विथ फ्लावर्स। आर गोइंग टू भी कभी कभी विल की जगह पर यूज होता है। तो ये सेंटेंस हमारा किस तरह से चेंज होगा? तो यहां पर बेसिकली हमारे पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक रिटेन्ड ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और एक हमारा ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास जो दिस रूम है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो हमने यहाँ पर चेंज किया है, और बाकी हमने आर गोइंग को चेंज कर दिया, इज गोइंग टू बी। डेकोरेट चेंज हो गया डेकोरेटेड के साथ, और विद रूम रिटेन्ड ऑब्जेक्ट है, वी चेंज हो जाएगा अस के साथ। दिस रूम इज गोइंग टू बी डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स बाय अस। नेक्स्ट इज जॉन couldn't remember the address of Jeff's house। तो यहां पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? द एड्रेस ऑफ जेफ्स हाउस। उसको हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा द एड्रेस ऑफ जेफ्स हाउस couldn't be remembered by John। सिंपल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 15, द मैजिशियन entertained the children with his tricks। तो मैजिशियन ने किसको एंटरटेन किया? चिल्ड्रन को। किस तरह एंटरटेन किया? अपनी ट्रिक्स के जरिए, ठीक है। तो हम इसको जब चेंज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हम चिल्ड्रन को चेंज कर रहे हैं सब्जेक्ट के अंदर, तो देखिए किस तरह से होता है। द चिल्ड्रन वर एंटरटेन्ड बाय द मैजिशियन विद हिज ट्रिक्स। यहां पर हम विद हिज ट्रिक्स को मैजिशियन से पहले लेकर नहीं जा रहे, क्योंकि हमारे सेंटेंस का जो फ्लो है वो नहीं बन पाएगा, इसलिए हमारा सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट होगा। द चिल्ड्रन वर एंटरटेन्ड बाय मैजिशियन विद हिज ट्रिक्स। I hope students it's very much clear to you. Still, if you have any sort of questions or queries, you can ask me in the comment section. Please like the video, share it with your friends, subscribe to the channel if you are new, and don't forget to press the bell icon so that you could be updated whenever I upload a video. Right? So take care. Allah Hafiz, students.